Hello students, good afternoon. I hope you all are good and watching the videos properly. In today's lecture over here, I am giving you the brief question answers of chapter number 21 diversity. Along with this video, I have already sent you the another PDF. In that, I gave you the objective exercise, textbook exercise, one sentence answer, one word answers, and the one and two sentences answers. Everything you have to complete in your classwork book in a history portion, sorry, in a civics portion. This is a civics chapter, so you will write this chapter in a civics portion. Okay, write it with a neat handwriting, and textbook exercise you complete in a textbook also and in a classwork book also. Okay, understood. So now I'm giving you the question answers briefly. Question answers. Question number one: what is the geographical diversity? How does it influence the lifestyle of the people? सबसे पहले हमें ये बताना है कि geographical diversity क्या होती है और वो people को influence, people की life उससे कैसे change होती है. The climate, vegetation and wildlife of India vary from region to region because of this geographical diversity. Geographical diversity की वजह से geographical diversity क्या है कि हर एक जगह की climate अलग है, वहाँ के vegetations अलग है, वहाँ के wildlife अलग है, बाकी सब कुछ different है. Nature ने हमें उस पूरे इंडिया में differ दिया है. ये है geographical diversity. For example, while the northern part of the country has a colder climate because of the Himalayas, the Thar Desert has a hot and dry climate. एक जगह पे नॉर्थ में जब कोल्ड क्लाइमेट होती है बिकॉज वहाँ पे हिमालयाज है, उसी टाइम पे थार डेजर्ट में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होती है. इंडिया के एक ही टाइम की बात हो रही है. क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, हर एक के क्लाइमेट, वेजिटेशन सब कुछ डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होती है. These geographical diversities also influence the food habits, dress, occupation, livelihoods and so on of the people living in these areas. इसीलिए जो एरिया में रहता है वहाँ की सब चीज़ डिफर हो जाती है. मतलब उनकी फूड हैबिट, वहाँ का ड्रेसिंग, वहाँ का ऑक्यूपेशन, लाइवलीहुड मतलब रहने का तरीका, सब कुछ अलग होता है. वो डिपेंड करता है उनके जोग्राफिकल कंडीशन पे कि वो कौन से एरिया में रहते हैं. ओके. For example, while many people in Kashmir wear shawls for a living because of the excellent quality of wool produce in the region, quite a few people living in Uttar Pradesh grow crops such as rice and sugarcane for the living because of a suitable climate condition. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि कश्मीर में ज़्यादा जो ऑक्यूपेशन है वो शॉल का होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वुल बहुत अच्छा मिलता है. उसी तरह उत्तर प्रदेश में शुगर कैन एंड राइस बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन ऐसा है, वहाँ पे ज़्यादा रेन होता है. राइस एंड शुगर कैन को ज़्यादा रेन चाहिए, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रेन होता है, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ें अच्छे से ग्रो हो सकती है. साउथ में पूरा कोस्टल लाइन है, तो वहाँ पे कोकोनट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं. तो हमारा जोग्राफिकल कंडीशन हमें ये बताता है कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हमारे रहने का तरीका क्या है. Understood? I hope you understood the question and the answer as well. Moving to the next question, what is the social and cultural diversity? Social and cultural diversity क्या होता है? People living in different parts of India follow different social traditions and customs and have different cultures. पूरे इंडिया में सबके कल्चर, सबके रिचुअल, सबके रीति रिवाज, तौर तरीके सब कुछ अलग होता है ना. आपको ही पता है गुजराती पीपल अलग है, महाराष्ट्र के पीपल के खाने पीने का, रहने का तरीका अलग है. उसी तरह से साउथ में तमिलनाडु केरला का अलग है, वेस्ट बंगाल लोगों अलग है. हमारे क्लास में अगर देख लो तो वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं और सबके तौर तरीके, सबके रहने के कस्टम्स, रिचुअल सब अलग होते हैं. They speak different languages, eat different kinds of food and celebrate different festivals. सबकी food habit, सबके festivals, सबके dressing sense, सबकी languages, सब कुछ differ करता है. This is called social diversity, differentiate.
When people from one part of the country move to another, they take their social traditions and culture with them. As they settle down and adjust to their new surroundings, their social traditions and culture also change, leading to the creation of a new tradition and the custom over time. जब भी कोई लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात से हम लोग महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए, तो हम साथ में हमारा गुजरात का ट्रेडिशन भी लेके जाएंगे। भले थोड़े टाइम के बाद थोड़ा बहुत उन लोगों का ट्रेडिशन हम अब अपना लेंगे, ठीक है, हम उनको जैसी सारी चीज़ें, लेकिन हमारा जो खुद का ट्रेडिशन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे गुजरात में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे साथ सारे हमारे गुजरात के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपना ट्रेडिशन भी उतना ही फॉलो करते हैं, उनके फेस्टिवल्स भी उतना ही फॉलो करते हैं। तो जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो हमारा जो कल्चर, हमारा ट्रेडिशन होता है वो चेंज नहीं करते हम लोग। ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या है? The people of India are engaged in a different type of activities to earn living. For example, some are farmers, some are doctors, etc. हमारे इंडिया में हर कोई कुछ ना कुछ काम में एंगेज्ड है अपने मनी अर्न करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए। कोई फार्मर्स है, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, तो कोई कोबलर है, तो कोई बिजनेसमैन है। हर एक लोग अलग अलग है, ये है डाइवर्सिटी। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, ये है डाइवर्सिटी, सबका ऑक्यूपेशन डिफरेंट है। But when people are judged by the amount of money they earn or the kind of life they lead arise out of inequality. But inequality कब काम होती है? जब people को उसके पैसे, कितने पैसे कमा रहे हैं उससे जज किया जाए। कि कोबलर है वो तो इतना ही कमाता है, ये इंजीनियर है, अरे वाह ये तो इतना कमाता है, उनकी लाइफस्टाइल, इसका तो बहुत ब्यूटीफुल हाउस है, इसका तो छोटा सा झोपड़ा है। जब वो चीज कंपेयर होने लगे तब अनइक्वालिटी आती है। भले सब लोगों का ऑक्यूपेशन अलग हो, वो डाइवर्सिटी कहलाती है, लेकिन वो डाइवर्सिटी में जब सबको जज किया जाए कि ये तो इतना कमाता है और उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है और इसके एजुकेटेड नहीं है, तब इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी क्या होती है? In caste-based inequality, people from the higher caste exploit those belonging to the lower caste. Caste-based inequality में क्या होता है? जो हायर क्लास के पीपल होते हैं वो हमेशा लोअर क्लास के पीपल को दबाते रहते हैं। एक्सप्लॉइट करना मतलब उनको दबाना, उनको परेशान करते रहते हैं। People belonging to the lower caste were not given equal opportunities in terms of education and employment. जो भी लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ हमेशा इनजस्टिस होता है। उनको ना तो एजुकेशन में अच्छे से, मतलब जो जहाँ उनको एजुकेशन लेना है, जो भी फील्ड में जाना है, वहाँ पे उनको परमिशन नहीं होती और काम में भी होता है। लोअर कास्ट के पीपल को ये काम नहीं करना चाहिए, उनको यही काम करना चाहिए, वो बड़े से ऑफिस में काम नहीं करते, उनको वो तो स्वीपर्स ही होते हैं, ऐसे माना जाता है। तो उनको वर्क के टर्म्स में और एजुकेशन के टर्म्स में भी इंजस्टिस होती है और वो प्रॉपर प्लेस नहीं मिलती है। तो ये है कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी और ये आज भी हमारे इंडिया में हो रहा है। लास्ट, हाउ इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी अ स्ट्रेंथ फॉर अवर कंट्री। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता। हम लोग डिफरेंट है फिर भी हम लोग एक है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी ताकत है। ये हम कैसे कह सकते हैं? People often argue and differ with each other on different issues. In spite of such issues, India's diversity has always been its strength. देखो, हम एक फैमिली में भी ऐसा होता है कि पीपल डिफर्स और सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, तो हमारे इश्यूज हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, हमारे में झगड़ा हो जाता है, फिर भी फैमिलीज में कुछ टाइम के बाद हम लोग साथ में हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे कल्चर में भी है कि हो जाता है, दो रिलीजन के बीच के, दो किसी के बीच, कास्ट के बीच अनबन हो जाती है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग वापस से साथ में हो जाते हैं। तो यही हमारी ताकत है कि जितने भी इश्यूज हो, जितने भी डिस्प्यूट्स हो, उसके बाद भी, इंस्पाइट ऑफ दैट, उसके बाद भी हम लोग साथ है। दिस इज कॉल्ड अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की अनेकता में भी एकता है।
Unity in diversity is a popular slogan that celebrates the oneness that is present between different groups of people in India. यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसा स्लोगन है कि हमारे पीपल को ये एकता दिखाती है, वननेस दिखाती है कि हम लोग अलग होते हुए भी एक है। भले हमारे में झगड़ा हो, हमारे में डिस्प्यूट है, फिर भी हम लास्ट में तो हम एक साथ में ही खड़े रहेंगे डिस्पाइट द डिफरेंस इन द कल्चर डाइवर्सिटी बैकग्राउंड। कोई भी बैकग्राउंड से आए, कोई भी कल्चरल से आए, कोई भी रिलीजन से आए हो, कुछ भी मगर हो जाए, लेकिन लास्ट में हम साथ में खड़े रहेंगे और यही हमारी ताकत है, यही हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ है हमारे कंट्री की। उसका एग्जाम्पल तो है ही ब्रिटिश रूल्स। ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, लेकिन इंडिया के सारे रिलीजन, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सब लोग, क्रिश्चियन, सब लोग एक होके साथ में मिलके हमने ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला है ना। तो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई होप ये 5 क्वेश्चन आंसर्स आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। This you will write properly in your classwork book neatly with a neat handwriting, and then you will show it to me on a WhatsApp. Okay, along with this question answers, even complete the other PDF which I have sent you. Okay, complete everything, write very properly in a civics portion, and then show it to me on a WhatsApp. So I'll again catch you in the next video. Till then, bye bye.